everyone. I am Sonal ma'am and I'll be taking your EVS class from now on. And we are going to start with our chapter number 4 today. And the chapter's title is Mangoes Round the Ear. So we will be discussing, as you can see on the front page of your video, that it talks about food. In this chapter we'll be talking about food spoilage and food preservation. Food spoilage is कि food जो खाना जो सड़ जाता है, और preservation is जब हम खाने को preserve करते हैं, मतलब हम उसको बचा के रखते हैं कि वो लंबे टाइम तक चल सके. That is food preservation. So if you will open your So on your first page only, there is a conversation, a discussion happening between three friends. So let's see this. So Neetu says, "Wow, Aman's lunchbox has sweet puris." Aman says, "Hey, today Neetu has brought potato sabzi." And Preeti says, "I've got bhindi." But Aman is not looking very happy. He says, "Oh Neetu, I think your potato sabzi is spoiled." And then Preeti says, "Don't eat that. You may fall sick. Here, you take some bhindi." So what is happening here? आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? ये तीन बच्चे हैं, ये स्कूल के अंदर अपना लंच देख रहे हैं और अमन देखता है और बोलता है कि पोटैटो की सब्जी स्पॉइल्ड हो गई है नीतू की. तो अमन को पता कैसे चला कि सब्जी स्पॉइल्ड हो चुकी है? अमन को उसकी स्मेल से पता चला कि सब्जी स्पॉइल्ड हो चुकी है. अमन got to know that the sabzi had foul smell or bad smell. That is how he could say that the sabzi has gone spoiled. The next question in your book is, have you ever seen some food that has got spoiled? How did you know that it was spoiled? So this question, students, you will have to do on your own. You will have to think about it and write it on your own कि आपने क्या देखा था जो spoiled हुआ था, कौन सा food आपने देखा जो spoiled हुआ था, और आपको पता कैसे चला कि वो spoil कैसे हुआ है. इसका जवाब आपको खुद देना है. The third question is that Preeti told Neetu not to eat the potato sabzi. What would have happened if she had eaten it? अब अगर हम खराब खाना खा लेते हैं, मतलब क्या होगा अगर उसने नीतू खा लेती उस सब्जी को? हम कभी भी कुछ खराब सब्जी खा लेते हैं तो क्या होता है? या तो हमारे पेट में दर्द होता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, या हम बीमार हो जाते हैं. तो इसीलिए she asked Neetu not to eat her potato sabzi because she may have gotten ill. Right? So this is food. These kids are talking about food spoilage है क्या? Food spoilage is a condition when the food is not edible anymore. Edible means it cannot be eaten. ये वाला खाना दोबारा खाया नहीं जा सकता. तो that is food spoilage. वो condition खाने की जब वो खाना खाया ना जा सके उसको बोलते हैं food spoilage. अभी पता कैसे चलता है कि फूड स्पॉइल्ड हो चुका है? या तो उसमें स्मेल आ रही होती है, या वो देखने में बहुत खराब लग रहा होता है, इट लुक्स बैड, या इट टेस्ट बैड, मतलब आपने गलती से खा भी लिया तो आपको एकदम से पता चल जाता है ओहो इसमें तो कुछ खराबी है, ये तो गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, या ये सारी चीजें होती हैं तो आपको पता चल जाता है कि फूड स्पॉइल हो गया है. लेकिन क्या फूड स्पॉइलेज और फूड वेस्टेज सेम है? नहीं. फूड वेस्टेज है जब हम सही खाना, जो खाना खाया जा सकता है, जब फूड इज एडिबल and yet we throw it away because we don't want to have it, that is food wastage. So क्या हमें food wastage करनी चाहिए? नहीं, food wastage नहीं करनी होती. But food अगर spoiled हो गया है, अगर वो edible नहीं है तो वो खाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं. So let's go forward and discuss this question. So look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2-3 days. अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसमें कुछ और भी आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. आप अपनी किचन में जाके देखिए कौन सा फूड आइटम खराब हो सकता है. अब जो 2 या 3 दिन में खराब होता है, 2 या 3 दिन में मिल्क है, दाल और रोटी, ये सब चीजें अगर ज्यादा दिन तक रखी रहेंगी तो ये खराब हो जाएंगी 2 या 3 दिन में मैक्सिमम.
आपने देखा होगा कई बार अगर मिल्क मम्मी भूल जाती है बाहर रखकर, फ्रिज में नहीं रखती, तो वो फट जाता है और फिर उनको उसका पनीर बनाना पड़ता है ना। या रोटी में फंगस या ग्रीन ग्रीन सा मोल्ड सी आ जाती है, तो वो रोटी अगर बाहर पड़ी रह गई और वो खाई नहीं या यूज नहीं हुई, तो वो रोटी भी 2 या 3 दिन में खराब हो जाती है। और कौन से ऐसे आइटम्स हैं वो जो कि हम 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं? फल सब्जियां, है ना, जैसे अनियन हो गया, पोटैटो, केक, ये 1 हफ्ते तक मैक्सिमम चल सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा अगर रह गई तो अनियन के अंदर लंबी लंबी वो हरी उसके ऊपर लॉन्ग स्टेम्स उगाती हैं। पोटैटो के अंदर आईज आ जाती हैं, आईज के अंदर छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। और केक के अंदर फंगस आ जाती है या मोल्ड आ जाती है या वो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं that do not spoil till 1 month? What things do not spoil till 1 month? जनरली आपने देखा होगा मम्मी कुछ राशन है जो महीने भर का साथ में लाकर रख दी है। वो क्या होता है? सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल. Yes. So if you can find some other things other than what I have shown here, you can write them also in your notebooks. So we'll skip these questions because we will not be able to do it right now. So we go on to the third question, which says, will your list be the same in all seasons? What would change? So no, our list, no, it will not be same in all the seasons. In summers, things go bad quickly. The food spoils quickly, and while in the food spoils slowly. The other next question is, when food gets spoiled in your house, what do you do? So अब जो खाना आपका वेस्ट खराब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? हम उस खाने को फेंक देते हैं. We throw away the spoiled food. Okay? Yes. So what happens is, Aman's BG went to market to buy bread. Just see in your notebooks here, 36, page number 36. Aman's BG went to market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. So क्या अमन की बीजी जो है वो मार्केट जाती है ब्रेड खरीदने के लिए और शॉप बहुत ज्यादा ही क्राउडेड होती है. तो शॉपकीपर फटाफट एक पैकेट ऑफ ब्रेड पकड़ा देता है और अमन की बीजी जब उसको देखती हैं वो उसको वापस कर देती हैं फौरन, है ना. तो लेट्स सी, लुक एट दिस पिक्चर हियर. व्हाई शी रिटर्न्स इट? व्हाई डिड बीजी रिटर्न द ब्रेड? कैन यू सी these green spots? Yes. So that is why she returned it. And how did she find that the bread had gotten spoiled? These green spots are mold or fungus on the bread, so it is not edible. That is why she got to know, with these green spots, she got to know that the bread is spoiled, and that is why she returned it. So based on this, that is why when we see some packets, when we buy something in the market, आपने देखा होगा मम्मी भी जो फ्रेश आइटम होते हैं जैसे मैगी हो गई, ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गए, आप उसके पनीर हो गया, आप उसका डेट चेक करते हैं, है ना. यू सी चेक द डेट की उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है या उसका एक्सपायरी क्या है, वो देखना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार एक्सपायर्ड खाना जब हम ले आते हैं और उसको हम खा लेते हैं, स्पेशली जूसेस के केस में, दिस इज वेरी हार्मफुल. अगर जूस का पैकेट पफ्ड हो, उसकी वार्निंग में भी लिखा होता है, रियल जूस के पैकेट में वार्निंग लिखी होती है कि इफ द पैकेट इज पफ्ड, डू नॉट बाय एंड डू नॉट ड्रिंक इट, बिकॉज वो उसमें फर्मेंटेशन या वो उसमें स्पॉइलेज हो चुकी है. अगर आप उसको पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे. So that is why we have to check all these things. Now today we will do 2 activities. One activity is that you will take a bread or a roti and you will put some water drops on it and you will put it in a box. Okay, close that box and see if the bread or roti
is same or whether it is changing every day. So this is a table that is given in your book also, and you can write here what do you feel by touch and what do you feel by smell. If you don't feel anything, you say nothing, and when you start feeling something, when you start touching and feeling something, then you write that. When you are touching the bread, touch it very softly, don't touch it very in a very harsh manner, because then you'll not be able to feel what exactly is there, because the mold or microorganisms are very soft. So for that you have to touch it very softly. If you don't have hand lens, then you don't have to do this section. And also you can observe what color the bread is, how the bread is changing its color. So this is a 6-day activity. You start now, and we will discuss this activity when once our chapter is over. So it will take 6 days for you to complete this activity. Okay. And remember that after touching the bread, after doing this experiment, always wash your hands. Do not put those hands in your mouth. आप अपने हाथ हमेशा वॉश करेंगे जब आप उसको ब्रेड को टच कर रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं. जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद अपने अपने हैंड्स को वॉश करना है. And there is another activity that I want you to do, and that is at your home, take any 2 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. जो पैक्ड फूड होता है उसके 2 पैकेट्स आप ले लीजिए, और उसमें आपने ऑब्जर्व करना है उसका लेबल. लेबल होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है. आपके पेरेंट्स आपकी इसमें हेल्प करेंगे हाउ टू राइट इट. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल चेक द लेबल and you will write that information, observe and write that, record that information. So जैसे मैगी हो गया या ब्रेड हो गया या आपके बिस्किट्स हो गए, anything, any two and you will cut that label and put it एक अपना पेज, एक पीस ऑफ पेपर पे आप उसको लगाएंगे और उसके सामने what that item is. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैगी है तो आपने मैगी लिखा, फिर उसमें आपने उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और उसका बेस्ट बिफोर और उसका नेट वेट, ये 3 चीजें आपने उसकी लिखनी है, देखनी है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड देन यू हैव टू राइट दिस. क्योंकि आपने नोट किया होगा, आपकी मम्मी भी जब मार्केट जाते हैं, पेरेंट्स जब मार्केट जाते हैं, तो जब हम अब ये आइटम्स लेते हैं जो पैक्ड फूड होता है, जब हम उसको लेते हैं या रेडी टू ईट फूड जब लेते हैं, तो उसमें हम हमेशा बेस्ट बिफोर देखते हैं या उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपायरी चीज पर खा लेंगे या यूज कर लेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं. सो आपको भी अब ये एक्टिविटी करनी है. 2 कोई भी फूड आइटम्स लेकर उनके बारे में आपको see here for use by date, see front of back. In front of back they have written used by 17 March. So you will have to write 3 things: net weight, use by या expiry date, and date of manufacturing. So in the next question that is there in your book, page number 38 is match with correct method of preservation for each food item. ये वो चीजें हैं जो हम घर में यूजुअली सब करते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मम्मा को भी करते हुए. तो मिल्क को कैसे प्रिजर्व किया जाता है 2-3 दिन के लिए, कैसे करते प्रिजर्व? I am sure everybody knows it is by boiling it. What do we do for the cooked rice? We put it in a bowl and keep the bowl in a container with some water. राइस को हम एक बोल में रखकर उसको एक पानी के कंटेनर में रख के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए. धनिया को हम एक डैम्प क्लॉथ, डैम्प मतलब थोड़ा सा पानी मॉइस्चर हो जिस कपड़े में, उसको हम थोड़ा सा गीला करके और उसका पानी, एक्स्ट्रा पानी सारा निचोड़ कर उस हल्के गीले कपड़े के अंदर हम धनिये को, ग्रीन कोरिएंडर को रैप करके रख सकते हैं. और अनियन और गार्लिक को हम ओपन में और ड्राई रखते हैं. ड्राई रहना चाहिए और ओपन प्लेस में रहते हैं, तो दे कैन बी प्रिजर्व्ड लाइक दिस. अभी हमने जो भी चीजें डिस्कस करी वो हमने डिस्कस करी फूड स्पॉइलेज को लेकर. सो व्हाट इज फूड स्पॉइलेज? अभी हमने क्या समझा है कि फूड स्पॉइलेज क्या होती है.
फूड स्पॉइलेज वो कंडीशन होती है जब हमारा फूड अनफिट हो जाता है कंजम्पशन के लिए. द कंडीशन व्हेन आवर फूड बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन इज कॉल्ड फूड स्पॉइलेज. और फूड स्पॉइलेज क्यों होती है? फूड स्पॉइलेज इसलिए होती है क्योंकि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड आइटम पे आ जाते हैं और वो उस पे ग्रो करते हैं, तो वो फूड स्पॉइलेज हो जाती है. फूड स्पॉइलेज होती क्यों है, मतलब कैसे, किस कंडीशन में होती है, मतलब कैसे हो जाती है? अगर हवा की वजह से मॉइस्चर, एयर, मॉइस्चर एंड वार्म टेम्परेचर आर द थ्री मेन कंडीशंस जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब मॉइस्चर ज्यादा होता है हवा में, और जब हवा लगती है चीजों को, तो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाता है. और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत माइक्रोब्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते आंखों से. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बट जब वो ग्रो कर जाते हैं तो हम वी कैन फील इट, है ना. उसको या तो वो एज अ मोल्ड आ जाते हैं, या वो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है किसी चीज पर, या उसकी स्मेल आने लग जाती है. फूड स्पॉइलेज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो जो हमने कंडीशंस बताई, अगर वो तीनों कंडीशंस, एयर, मॉइस्चर और टेम्परेचर, अगर हम कंट्रोल कर दें, अगर हम उसको मतलब वो कर दें, यूज करें उसको एडवांटेज में, हम उसको फूड स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे हम रिमूव एयर मतलब हम एयर टाइट कंटेनर्स में अपनी चीजें रखते हैं, जैसे हम बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गया, दालें हो गई, पल्सेस हो गए, ऑल दीज थिंग्स वी कीप इन एयर टाइट कंटेनर्स सो दैट द एयर डज नॉट गो इनसाइड, हवा ना जाए, है ना. फिर वार्म टेम्परेचर, हम बहुत सारी चीजें जो पकाते हैं हम उसको फ्रिज में रख देते हैं. क्यों रखते हैं फ्रिज में? क्योंकि वो उसमें टेम्परेचर कोल्ड होता है, इट इज कोल्ड, तो इसलिए हम उसको वार्म टेम्परेचर से हटा देते हैं. एंड द थर्ड इज टू ऐड प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स बहुत तरीके के होते हैं. हमने देखा है पिकल्स होते हैं जो बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, इवन इन कीप लाइक दिस. तो जैसे सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, या शुगर हो गया, हम डालते हैं चीजों में, जैम हम बनती है दैट, तो ये सब चीजें प्रिजर्वेटिव्स उसमें हम डालते हैं तो ये लंबी चल जाती हैं. सो दैट इज बेसिकली एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, है ना. सो दैट बिकम्स फूड प्रिजर्वेशन. एंड फूड प्रिजर्वेशन इज अ